سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ گڈز ٹرانسپورٹرز کا مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان۔ ٹرانسپورٹ یونینز کے تمام عہدیدار ایک ہفتے سے ہڑتالی کیمپ میں موجود ہیں۔ صدر شہزاد اعوان کا حکومت سے عملی اقدامات کا مطالبہ، بولے حکومتی نمائندے صرف زبانی یقین دہانیاں کروا رہے ہیں۔ کر رہے ہیں کہ فوری طور پر جو ہے ہماری تمام تر ڈیمانڈ گورنمنٹ تسلیم کرے، اور ہم نے گورنمنٹ کو یہ میسج دے دیا ہے، فیڈرل گورنمنٹ کو، سندھ گورنمنٹ کو اور پنجاب گورنمنٹ کو، کہ ہماری یہ اسٹرائک اس ٹائم تک جاری رہے گی جب تک سارے کے سارے مطالبات جو ہیں وہ حکومت جو ہے وہ اس کو تسلیم نہیں کرتی۔ یہ 7 دن نہیں، یہ 70 دن بھی بیٹھنا پڑا تو یہ جو آپ کو لوگ نظر آ رہے ہیں یہ یہاں سے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ ہمیں یہ خبر ملی ہے کہ پنجاب گورنمنٹ کا ایک ڈیلیگیشن جو ہے وہ اگلے 1-2 دن میں یہاں کراچی آ رہا ہے، اور فیڈرل گورنمنٹ نے بھی ہمیں یہ کہا ہے کہ آپ اسلام آباد آئیں، ہم سے مذاکرات کریں اور آپ کے تمام تر مطالبات جو ہیں وہ ہم تسلیم کرنے کو تیار ہیں۔ تو ہم نے جو ایک مذاکراتی کمیٹی تشکیل دی ہے اس کے اندر ہم نے یہی ڈیسائیڈ کیا ہے کہ اس ٹائم تک ہماری اسٹرائک جاری رہے گی جب تک پنجاب گورنمنٹ کا ڈیلیگیشن اور فیڈرل گورنمنٹ کا ڈیلیگیشن جو ہے وہ یہاں آ کر ہمارے سارے مطالبات جو ہے وہ تسلیم نہیں کرتا۔ اس ٹائم تک ہم اسٹرائک کال آف نہیں کریں گے جب تک سارے مطالبات ہم تسلیم نہیں کرتے۔ گڈز ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال کے باوجود سبزیوں کی قیمتوں میں استحکام برقرار۔ سبزی فروشوں کے مطابق سبزیوں کی قیمتوں میں کوئی فرق نہیں آیا۔ زیادہ تر مال سندھ سے سوزوکی کے ذریعے آ رہا ہے۔ افغان بارڈر بند ہونے سے بھی سبزیوں کی قیمتوں میں کمی دیکھنے میں آئی۔ کاوش میمن کی رپورٹ۔ گڈز ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال کا سبزیوں کی قیمتوں پر کوئی اثر نہ پڑا۔ شہر میں سبزیوں کی قیمتیں خاص اضافہ دیکھنے کو نہ ملا۔ مارکیٹ میں ٹماٹر 30 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہا ہے، جبکہ آلو 60 روپے، پیاز 80 روپے، مٹر 200 روپے اور بھنڈی 240 روپے فی کلو دستیاب ہے۔ سبزی فروشوں کا کہنا ہے کہ زیادہ تر سبزی سندھ کے مختلف علاقوں سے سوزوکی اور چھوٹی گاڑیوں کے ذریعے منڈیوں تک پہنچ رہی ہے، جس سے رسد متاثر نہیں ہوئی۔ ریٹ نارمل چل رہے، منڈی میں مال آ رہے کیونکہ ابھی اندرونی سندھ سے مال آ رہا ہے، مال میں جو ہے فرق اضافہ نہیں آ رہے، تو میں مزید کم ہوا ہے، بڑا نہیں ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ سبزیوں کے ساتھ دیگر ضروریات زندگی کی اشیاء بھی سستی ہونی چاہیے۔ یہاں پہ ہر چیز کی ضرورت ہے، یہاں پہ جو اتنا مہنگائی ہو گئی ہے کہ بندہ ایک چیز بھی نہیں خرید سکتا۔ اصل جو مہنگا ہے تیل، گھی، آٹا، یہ پبلک کی کمر توڑ رہا ہے، اس میں توجہ دو۔ تاجروں کے مطابق افغان بارڈر بند ہونے کے باعث سبزیوں کی مقامی مارکیٹ میں دستیابی بڑھی ہے، جس سے بعض سبزیوں کی قیمتوں میں کمی دیکھنے میں آئی ہے۔ کیمرہ مین عمران ایکے کے ساتھ کاوش میمن، سٹی 21۔ حافظ نعیم کی یوسی میں پیپلز پارٹی کام کروا رہی ہے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کی جماعت اسلامی پر طنز کے نشتر، بولے جماعت اسلامی کے ٹاؤنز روڈ کٹنگ کی مد میں ملنے والے 14 ارب اور کلکس سے ملنے والے 6 ارب روپے کا حساب دیں۔ میئر کراچی اور جماعت اسلامی ایک بار پھر آمنے سامنے۔ مرتضی وہاب کی جماعت اسلامی پر تنقیدی وار، شعیب مختار کی رپورٹ۔ میئر کراچی اور جماعت اسلامی ایک بار پھر آمنے سامنے۔ مرتضی وہاب کے جماعت اسلامی پر لفظی وار۔ ناظم آباد بلاک ایف اندرونی سڑکوں کی مرمت، برساتی نالہ اور سیوریج اور دیگر منصوبوں کا افتتاح۔ تقریب سے خطاب میں مرتضی وہاب بولے حافظ نعیم کی یوسی میں کام پیپلز پارٹی کروا رہی ہے۔ پیور بلاک لگانے سے قبل یہاں کے مکینوں سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اب کسی کو روڈ کٹنگ کی اجازت نہیں دیں گے۔ اعلان جماعت کا، کام مرتضی وہاب کا، علاقہ ہے حافظ نعیم الرحمان صاحب کا۔ یہ غالباً یہاں سے یوسی چیئرمین وہ منتخب ہوئے، لوگوں کو امیدیں انہوں نے دلائیں، لیکن یوسی چیئرمین بننے کے بعد وہ تو لاہور چلے گئے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے تقریباً 10 کروڑ روپے کی لاگت سے یہ اندرونی گلیاں جو کہ ہمارے ڈومین میں نہیں تھیں، ہمارا کام نہیں تھا، یہ اندرونی گلیاں بنا کے آج یہاں کے علاقہ مکینوں کے ہم نے حوالے کیے۔ میئر کراچی نے ٹاؤنز روڈ کٹنگ کی مد میں ملنے والے 14 ارب اور کلک سے ملنے والے 6 ارب کا حساب مانگا اور طنز کیا کہ چنگچی رکشوں پر پابندی عائد ہے، مگر ہزار روپے دے کر رکشوں کے پیچھے بینرز لگانے والوں کو سب جانتے ہیں۔ لوگوں کو مایوسی نہ بیچو، لوگوں کو امید دو، لوگوں کو بتاؤ ان کے مسائل کیسے حل ہو سکتے ہیں، لوگوں کو بتاؤ جو 14 ارب روپے روڈ کٹنگ کے پڑے ہوئے تم لوگ کب خرچ کرو گے، لوگوں کو بتاؤ جو کلک کے سندھ گورنمنٹ نے تم کو 6 ارب روپے دیے وہ کب خرچ کرو گی، ٹائم لائن کیا ہے۔ میئر کراچی کا مزید کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ نے ریڈ لائن، گرین لائن سمیت مختلف اہم منصوبوں کا دورہ کیا اور ان کی بروقت تکمیل کی ہدایت دی ہے۔ کیمرامین حارث علی کے ساتھ شعیب مختار، سٹی 21۔ میئر کراچی نے شہر کی تمام یونین کمیٹیوں سے 2.5 سال کا حساب مانگ لیا ہے۔ بیرسٹر مرتضی وہاب کہتے ہیں شہر کی 246 یونین کمیٹیوں کے فنڈز کا آڈٹ کیا جائے گا۔
हर यूनियन कमेटी को अब माहाना 13 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। फंड्स कहां और किन कामों में इस्तेमाल हो रहा है, इसके लिए ऑडिट करवाने का फैसला हुआ है। आप तो लेना चाहिए ना कि जब लोग कहते हैं हमें पैसे नहीं मिलते और ये कहते हैं हमारे पास वसाइल नहीं है, तो आप मुझे बताइए क्या 12-13 लाख रुपए कोई छोटा अमाउंट है? जब ये निज़ाम आया था 5 लाख रुपए हर यूसी को मिलते थे, आज उसी को 12 लाख रुपए मिल रहे हैं। और उसके बाद वो यूसी चेयरमैन कहता है कि मेरे पास 2000 का ढक्कन लगाने के पैसे नहीं हैं। ये बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज़ है और मैं चाहूँगा कि मुनाफिकत को अगर ख़त्म करना है तो थोड़ा दबंग होके खुल के बात करनी होगी। ये नहीं हो सकता कि इल्ज़ाम लगाते रहो, तमाम इख्तियारात पर बैठे रहो, तमाम ओहदों पर बैठे रहो, फिर कहो मेरे पास वसाइल नहीं है। ये चीज़ नहीं हो सकती। अगर ये मुनाफिक काम नहीं कर सकते तो घर चले हैं, हम जाले आपको चला के दिखाएंगे इंशाल्लाह। तो यार उनको जो ट्रेंड मेरे खिलाफ चलाना है ना चला लें, लेकिन ट्रेंड अब बिलावल ही है इंशाल्लाह। औरंगी टाउन साबरी चौक का बरसाती नाला खस्ता हाल की आखिरी हदों को छूने लगा। तबाहाल नाले की पुलियों की छत भी गिर गई। हादसात की शरह में इजाफा और आमद व रफ्त में शहरियों की मुश्किलात बढ़ गई हैं। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। शहर में टूट फूट की शिकार सड़कें, बरसाती नाले हादसात का सबब बनने लगे। यूं तो औरंगी टाउन में निशान हैदर ता उर्दू चौक तो रोया सड़क पहले ही टूट फूट का शिकार और कचरे से भरी दिखाई देती है, मगर साबरी चौक के करीब तो हद ही हो गई। बारिशों के बाद बरसाती नाले की सड़क पर बनी पुलिया में 2 बड़े बड़े सुराख हो गए। सेक्टर 11A और B में बरसाती नाले की छत जगह जगह से बरसों से गायब। शहरी कहते हैं यहाँ कई खतरनाक हादसात रोनुमा हो चुके हैं। बरसाती नाले की खस्ताहाली के बाइस न गली में महफूज हैं ना सड़क पर। बहुत ज़्यादा जाने जा चुकी हैं, बहुत ज़्यादा। वहाँ पे वो देख रहे हैं, वो सामने खड्डे बने हुए हैं, गाड़ियाँ गिरती हैं, बाइकें गिरती हैं, बहुत ज़्यादा मौसम वहाँ पे नुकसान हो रहा है, कोई भी नहीं आ रहा। तकरीबन 50 साल हो गए कोई काम होते हुए नहीं देखा यहाँ पे। और मेरे दामाद का घर है इधर ही, उनका वो ठेला चलाते हैं गरीब, पॉपकॉर्न की मशीन, ठेला, पूरा ठेला जो है ना नाले में बह गया। हादसात मैंने बताया ना कि या तो मुस्तकिल हादसा, कोई कहने सुनने वाला भी नहीं है, कोई पूछने वाला भी नहीं है। अब लावारिस लोग रह रहे हैं। मुतासिरा सड़क जिला गरबी और जिला किमाड़ी के मकीनों की अहम गुजरगाह है, इसलिए बरसाती नाले की हंगामी बुनियादों पर मरम्मत की अशद जरूरत है। कैमरामैन आगा रफीक के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। कराची में LPG की कीमतों ने ट्रिपल सेंचुरी कर ली। ओगरा के मुकर्रर निर्खों की खिलाफ वर्जी करते हुए LPG 100 रुपये फ़ी किलो महंगी फरोख्त की जा रही है। शहरियों ने LPG महंगी होने पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। काविश मेमन की रिपोर्ट। कराची में LPG की कीमतें आसमान पर, ट्रिपल सेंचुरी क्रॉस कर गई। शहरी परेशान, ओगरा के मुकर्ररा नरखों की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी। LPG 100 रुपए फी किलो तक महंगी फरोख्त। शहरियों का कहना है कि महंगी LPG की फरोख्त ने घरेलू बजट को शदीद मुतासिर कर दिया है, जबकि इंतजामिया की जानिब से मौसर कार्रवाई न होने पर तशवीश में इजाफा हो रहा है। महंगाई दिन ब दिन बढ़ रहे है। कोई LPG 300 रुपए किलो दे रहे, कोई 350 दे रहे, कोई 290 दे रहे। कोई मुल्क में सिस्टम नहीं है। पहले ये LPG 230-40 रुपए चलती रही है, उसके बाद 250 हुई, उसके बाद 270-80, 290 तक पहुंची। हमारे ये करीबी जो दुकानदार है इनके पास 280 रुपए। शहरकाद में मौसम सरमा की आमद के साथ ही खरीदारी का रंग भी गहरा। ब्रांडेड कपड़े, जूते और गर्म मलबूसात और लग्जरी अशिया। क्लिफ्टन के संडे बाजार में शहरियों का रश बढ़ गया। मार्केट की सबसे बड़ी खूबी ये है कि यहाँ मुस्कुराहट के साथ सौदे तय होते हैं। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट। क्लिफ्टन का संडे बाजार, जहां सर्द मौसम के साथ ही खरीदारी की रौनकें भी उरूज पर हैं। बाजार में ब्रांडेड कपड़े, जूते, गर्म मलबूसात और लग्जरी अशिया दस्तयाब, वो भी ऐसे दामों पर जो मॉल्स और बड़ी मार्केटों के मुकाबले में कहीं ज्यादा सस्ते। महंगे नहीं हुए, सस्ते हुए, महंगे नहीं हुए। इस वक्त बहुत कम फर्क आया हुआ इस पे, इतना ज्यादा फर्क नहीं आया हुआ। यहाँ पे कलेक्शन आती है, हमें भी महंगी पड़ती है। सर ये हमारे लिए जैसे एक रोज़गार का ज़रिया है। आपको पता है इतनी महंगाई में यहाँ पर हमने हर आइटम रखा हुआ है, जो कि महंगी चीज़ें भी हैं, सस्ती भी, यानी कि यहाँ पे हर रेट का माल होता है जो आदमी गरीब से गरीब आदमी भी उसको परचेज़ कर सके। बिल्कुल किसी नेमत से कम नहीं है, यानी कि अपनी कैपेसिटी के हिसाब से वो हर चीज़ यहाँ से परचेज़ कर सकता है। जितने भी संडे बाज़ार लगे हुए कराची में, खरीदारों का कहना है कि यहाँ न सिर्फ वैरायटी ज्यादा है बल्कि कीमतें भी आम शहरी की पहुँच में है, जिसकी वजह से ये बाजार हर खास आम की पहली पसंद बनता जा रहा है। ये बात तो कर रहा था तो इसका बोल रहा है 2000 रुपया, मैंने बोला 500 रुपया ले लो। सही है, लेकिन नहीं दे रहा है। इंसाफ करो, मिसाल 200 तक ऊपर है, 700 तक हो जाएगा।
दुकानों से ये फिर भी सही है, दुकानों से सही है। बाजार में गर्म मलबूसात के साथ बर्तन, जूते, खिलौने, शो पीस और दीगर घरेलू अशिया भी फरोख्त के लिए लाए जाते हैं। खरीदार और स्टॉल होल्डर्स के दरमियान भाव ताल भी इस बाजार की एक दिलचस्प रिवायत है, जहां मुस्कुराहट के साथ सौदे तय पाते हैं। कैमरामैन वाहिद खान के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। आगे बढ़े, आपको बताएं कि कराची में सर्दी के आगाज के साथ ही गर्म मलबूसात की मांग में इजाफा। लाइट हाउस में कम कीमत और मेयारी जैकेट्स की फरोख्त उरूज पर है। 400 रुपए में जैकेट शहरियों के लिए बड़ी सहूलत बन गई है। काविश मेमन की रिपोर्ट। हवाओं में गर्म मलबूसात का राज, लाइट हाउस में खरीदारों का रश। शहरियों का कहना है कि महंगाई के इस दौर में सस्ते बाजार किसी गनीमत से कम नहीं, जहां महदूद आमदन वाले अफराद भी सर्दी से बचाव के लिए मुनासिब मलबूसात खरीद सकते हैं। इधर तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सस्ता मिलते हैं, लेकिन ये और मार्केट में जाते हैं ना तो ये कोट मैंने लिया 400 में, ये उधर 2000-3000 मिलते हैं, इधर 400 मैंने लिया। महंगाई का दौर है, इस दौर में ये इस रेट में मिलना भी गनीमत है। बाकी चीजें भी इस तरह बूट शूट भी दूसरे शहर के मुताबिक जो है वो बहुत सस्ती है। दुकानदारों का कहना है कि सर्दी बढ़ने के साथ खरीदारों की तादाद में इजाफा हो रहा है। फरोख्त में नुमाया बेहतरी आई है। ये हमें सस्ते भी मिलते हैं और हम गिराव को भी सस्ते में देते हैं। रश लगे हुए बस सर, सर्दी लोग ले लेते हैं। शहरियों के मुताबिक 400 रुपए में मायारी जैकेट्स की दस्तयाबी इनके लिए बड़ी सहूलत है। कैमरामैन इमरान के साथ काविश मेमन, सिटी 21। शहर कायद में साहिल के करीब स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान यूनिफाइड मैराथन का इनेकाद किया गया। रेस के मुख्तलिफ कैटेगरीज में शहरियों ने बड़ी तादाद में हिस्सा लिया। 11वीं मैराथन में खुसूसी अफराद के लिए 1 किलोमीटर की रेस भी रखी गई। जावेद इकबाल की रिपोर्ट। कराची में जज्बे और हौसले के साथ स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान की यूनाइटेड हाफ मैराथन मुनक्किद हुई। मैराथन में 5, 10 और 21 किलोमीटर समेत 4 मुख्तलिफ कैटेगरीज रखी गयी, जिसमें शुरका की बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया। 11 SOP मैराथन में माशाल्लाह मीरपुर खास से पार्टिसिपेट किया है और हम SOP का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आज यहाँ मेडल विन किया है। यहाँ पर आके बहुत अच्छा लगा और हमने यहाँ पे रेस की 21 किलोमीटर हम भागे और ये अच्छे इवेंट होते हैं। कराची में ऐसे इवेंट होना चाहिए। स्पेशल बच्चों के लिए ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था। We had a huge turnover. The event was amazing. We're wrapping it up now and just looking back at it, we didn't think it would be such a great success. मुंतज़िमीन का कहना था कि इस रेस में खुसूसी अफराद के लिए कैटेगरी रखने का मकसद स्पेशल अफराद को माशरे के बराबर का हिस्सा बनाना है। जिंदगी का मकसद यही है कि हम सब मिल के जिए। जब तक अगर हम अपने स्पेशल या डिफरेंटली एबल्ड बच्चों को, लोगों को अलग करके रखेंगे, तब तक पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। सो बहुत ज़रूरी है कि हम पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ को भी इक्वल राइट्स दें, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दें, उनके लिए पाकिस्तान को आसान बनाएं। स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान यूनाइटेड मैराथन में शोबिस इंडस्ट्री से ताल्लुक रखने वाले अदाकार भी शरीक हुए। हमारे स्पेशल बच्चे जो आए थे आज यहाँ पे सुबह पहुँचे थे, तकरीबन वो भी 1000 थे। बहुत ज़रूरी है कि इन बच्चों को सामने लाएं और क्योंकि उनके पास भी उतनी हुनर जितनी उन पर काम करेंगे वो बच्चे आगे बढ़ सकते हैं। 21 किलोमीटर की रेस में मोहम्मद अख्तर ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए पहली पोजीशन हासिल की। दूसरी पोजीशन अमीन मोकाती और तीसरी सादिक शाह ने ली। कैमरामैन मोहम्मद हारिस के साथ जावेद इकबाल, सिटी 21।